नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल ऑफ कंपटीशन। स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, ICLS अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड। विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल वॉलपेपर। आज आसनसोल रेल इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर के जरिए तामीरात तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम। तहरीक चला रहे दुकानदारों ने बुलडोजर को रोक दिया। मकामी काउंसिलर और उत्पल सिन्हा ने कहा कि जब तक इनके रहने का बंदोबस्त ना किया जाए हम लोग इस बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत करते रहेंगे। मुआवजे और रिहेबिलिटेशन की मांग पर रेल पार्क ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से भी धरना चल रहा है। बनकर সব নাক তো এদিকে পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ সব জিনিস দিতে হবে, তারপরেই আমরা এখান থেকে সরবো, নাহলে আমরা এখান থেকে সরবো না। আর আমাদের এখানে দাদারা ভাই এই দোকান দিয়েই তো তাদের 8 দিন ধরে আমরা এখানে আমরা ই করছি, সংসার চালা হচ্ছে, পড়াশোনা হচ্ছে, সবকিছু চিকিৎসা হচ্ছে। সেখানে কি করে রেল এখানে ই করে যে এখানে ভেঙে আমরা রেল লাইন চালিয়ে দেবো? তাহলে তাদের কোনো কিছু ব্যবস্থা করলো না পুনর্বাসনের? কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি আমাকে। আমি যে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমাকে কোনো নোটিশ দেয়নি। তাহলে বিনা নোটিশে কি করে চলে এলো ভাঙতে এখানে? আমি এজ এ কাউন্সিলর কি চাইছেন? আমি চাইছি এনাদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ সবকিছু দিতে। কে দেবে? রাজ্য সরকার না রেল? রেল দেবে, এটা রেল দেবে। রাজ্য সরকার তো বলেনি যে এটা ভেঙে গুড়িয়ে দাও। রাজ্য সরকার বলেছে যে এটা ভেঙে গুড়িয়ে দাও, এটা রেল করছে, রেলকে দিতে হবে। রেল অ্যাকচুয়ালি যে এই যে দাদা অধিগ্রহণ করলো সেগুলো তো যে আপনারা যে অধিগ্রহণ করছেন, আপনারা বিল্ডিং ওনারদের কাছে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে অধিগ্রহণ করবেন। কারণ আপনারা আজকে যেটা ওনারা পয়সা দিয়ে কিনেছেন সেটা কিন্তু সমস্ত ব্যবসায়ীদের দোকানগুলোকে সমেত ওনারা কিনেছেন। লাইবিলিটি রেল নিয়েছে, দোকান মালিকদের লাইবিলিটিটা রেল কিনেছে এবং গোপনভাবে তাদের চুপচাপ করে তাদের পয়সা দিয়ে এখান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। তো রেল যখন তাদের এইভাবে নিয়েছে, যখন লাইবিলিটি রেল নিয়েছে, তখন রেল কেন তার লাইবিলিটিটার সুরাহা করবে না? রেল কেন তার পুনর্বাসন করবে না? আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি আমার যত ব্যবসায়ী আছে প্রত্যেকের সঠিকভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং রাস্তার ধারে আমাদের দিতে হবে। এবং যে সমস্ত বাড়িতে ভাড়া আছে, দুস্থ ফ্যামিলিরা ভাড়া আছে, যাদের বর্তমান যুগে সেই টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের জন্য অন্যত্র সেই ইন্দিরা আবাস যোজনাই হোক বা কিছু হোক, তাদের ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি না করা হয় কি করবেন? আমরা এখন আন্দোলন চালিয়ে যাব, আন্দোলন পুরো চালিয়ে যাব। আমরা নিজেদের জীবন পণ করে রেখেছি, দরকার হলে জীবন দিয়ে দেবো, কিন্তু আমরা বিনা পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং সবার ব্যবস্থা না হওয়া অবধি আন্দোলন আমি ছাড়ব না। আমার নাম আশিস কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, আমি রেল পার্ক ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত মানুষদেরকে
তাদের টাকা পয়সা নিয়েই মানে কিনেছে দোকান, সব কিছু কিনেছে, তাদেরকে কিন্তু কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি। তারা চুপি চুপি রাতারাতি দিয়ে তাদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এটা কেমন ধরনের রেলের দোকানদার আছে, কেউ 50 বছরের দোকানদার আছে। আজকে রেল পাঠিয়েছে বুলডোজার, কোনো ইনফরমেশন জানায়নি যে হ্যাঁ আমরা আসছি, হঠাৎ করে এসে চলে এসে বুলডোজার ভাঙার জন্য। এটা কি ধরনের? না, আমি কাউন্সিলর, আমাকেও কোনো নোটিশ দেয়নি। কেন নোটিশ দেবে না? আমার ওয়ার্ডে ভাঙতে আসছে, তো সেখানে একটা নোটিশ দেবেন না যে দিদি আপনার ওয়ার্ডে যাচ্ছে, যে একটা নোটিশ পাঠালাম যে আপনি দেখবেন। এটা না করে কি করে পাঠালো? আমরা পুরো আমাদের সমস্ত দাদাদের, ভাইদের, সমস্ত যত যা আছে যে ব্যবসায়ীরা, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পুনর্বাসন দিতে হবে। এইটা দিক আমরা সরে যাচ্ছি। আর নচেত আমাদের এখানে রক্ত আর লিখিতভাবে দিতে হবে। মৌখিকভাবে যে হ্যাঁ দিয়ে দেবো সেটা হবে না, লিখিতভাবে রেমিনেন্স স্ট্যাম্প মেরে কোর্ট পেপার হয়ে তারপরে আমরা দেখতে চাই, সেরকম নিতে চাই। আর না হলে আমরা পুরো এখানে সব শুয়ে যাবো, বুলডোজার চলে যাবে একদম। রক্ত এমনিও না খেয়ে মরবো, এমনি তাছাড়া বুলডোজারের তলায় খেয়ে মরি। আর আমরা একদম রক্ত বন্যা বইয়ে দেবো এখানে। আমাদের রাস্তার ধারে দোকান চাই, একদম ভেতরে, আর রেল দায়ী সমস্ত। এখানে পুরো ব্যবসায়ী মরলে একদম রেল রেল। हाँ, बुलडोजर सरकार पहले भी हम लोग बोले थे, हमारा मिनिस्टर मलय घटक जी उन्होंने भी बोला था सारा देश में बुलडोजर चल रहा और यहाँ बुलडोजर नहीं आएगा। हम लोग ये जानते हैं, बुलडोजर सरकार की बुलडोजर भेजा है। यहाँ साधारण जन नागरिक है जिनका जीवन यात्रा इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई इलीगल ऑक्युपायर नहीं है, कोई भाड़ाटे है, टेनेंट है, दुकानदार है, सब अपना अपना जगह में है। अचानक बुलडोजर भेजा है, लेकिन ये साकार नहीं होगा। हम लोग जितना यहाँ इंसान है सब आज रोड पर है, और चाहे हम लोग का ऊपर से बुलडोजर जाएगा, जब तक हम लोग का ऊपर से बुलडोजर नहीं ले जाएगा, एक भी घर, एक भी दुकानदार का किसी हानि होने हम लोग नहीं देंगे। इसके लिए जो करना है हम लोग करेंगे। गैस लगने से सेल आईएसपी के मुलाजिम की मौत की खबर से शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि विजय सिल सी शिप में बीओएफ कन्वर्टर फ्लोर में ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान उसे बेचैनी होने लगी, जिसके बाद विजय को ओएचएस ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। परिवार के एक फर्द की नौकरी और मुआवजे की मांग की गई है। आईएनटीयूसी रहनुमा हरजीत सिंह और दीगर लोगों ने इस सिलसिले में तफसील से जानकारी देते हुए कहा। पास लेकिन स्टील प्लांट है, हजार कोशिश के प्रॉब्लम हो जाता है, जो है वो होता है हम लोग, लेकिन हमारे को दे रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, लेट सुजॉय सील सन ऑफ सुनील सील, गेट पास नंबर GP/2021/23, engaged by Messrs Test Metal Engineering, expired on private limited sir। हाँ ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं है। On 6/12/2022, he was in C shift duty on 6/12/22, 6/12/2022 को C शिफ्ट में थे। उनको एंगेज किए थे टेस्ट मेटल इंजीनियरिंग, उनका नाम सुजय सिंह है, उनका फादर का नाम सुनील सिंह है। ठीक है, ये काम कर रहे थे शब्द। while working at 26 meter converter floor of BOF department, he felt some discomfort and came to the store room for rest. When his discomfort level increased, जब वो बढ़ गया तब उनको OHS लिया गया। Compassionate employment to one of the eligible family members shall be provided, subject only to the outcome of primary postmortem report and not on any other associated report like visceral within 30 days। 30 दिन के अंदर एलिजिबल एक फैमिली मेंबर को ये नौकरी हम लोग देंगे। आपको उनका नाम रिकमेंड करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर में उनको ये दिया जाएगा। ओनली सब्जेक्ट टू जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार ही होगा, और हम लोग इसके अलावा और कोई चीज़ रिजर्व रिपोर्ट एक्सेट्रा हम लोग नहीं मांगेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस में आपको नौकरी मिलेगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है।
ऐसे सर लिखा हुआ जो रेस्ट আমি কেন বলবো শরীর খারাপ ছিল গ্যাস লাগার জন্য মন শরীর খারাপ লিখে আমি তাহলে সিক লিখে নিয়ে কি हुआ আমি সিক লিখিনি ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটা আপনাকে দিচ্ছি আপনি ভাই হ্যাঁ হলো मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, इसमें कोई कॉजेज ऑफ गैस नहीं आएगा, उसके बाद क्या डिसीजन होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे ही होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है वो देख लीजिए। नहीं आएगा अभी से एज्यूम करना आएगा नहीं आएगा उससे ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए कंपनी का भी एक नियम है, जब तक वो कॉज असर्टेन नहीं होता है तब हम भी कुल्लम नहीं। हम लोग बोल दिए कि एग्रीमेंट अगर होगा तो दूसरा रिपोर्ट उसमें क्लियर होना चाहिए कि दूसरा रिपोर्ट आप लोग नहीं मांगोगे। दूसरा रिपोर्ट का तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 8 से 9 महीना लग जाता है। वो आता है हैदराबाद से, आप लिख दोगे दूसरा रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट क्या आएगा नहीं आएगा उसके लिए 8-9 महीना फैमिली सफर करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए ये बात है, इस बात को ऑनेस्टली आप लोग भी मानिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैस हो या हेड इंजरी हो, कहीं चोट लगता है तुरंत बता देता कि हाँ ये है, क्या कि सलामत हुसैन का कुछ नहीं करता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हेड इंजरी है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी हम लोग केस किए हैं, 18 को हेडिंग है, कल हेडिंग है। तो उसी केस को देख के हम लोग इसको बोले कि नहीं आपको लिखना होगा के लिए। पहले वाला मैसेज जब दिया था तो उसमें दूसरा रिपोर्ट नहीं लिखा था, हम लोग नहीं दूसरा रिपोर्ट साफ करके लिखना होगा, लिख दिया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओनली। हम ओनली का मतलब क्या है, तो फिर लिखा है कि हाँ यस रिपोर्ट करती है, तो हम ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, कौन जल्दी कर तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? नहीं करेगा तो उसी ग्रेड में रहेगा, उसको प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन तो नहीं होगा अगर 10 पास नहीं करेगा। अगर 10 पास करेगा तो S1 ST ST जो सिस्टम है उससे आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो वही ब्लॉक कर देगा। वो ना काउंट पर में लेडीज थी 15 साल के बाद वो लाई है, तो अभी 9 तक करे हैं, 8 पास है तो ठीक है। चलिए यही बात आए थे, अगर वाइट ना ठीक है हाँ ठीक है। वो सब यहाँ पे बात, अरे ये तो केवल हम लोग फ्यूचर की बात समझ हम लोग 2 लड़का को रूम में बंद करके और 2 बहन सियासत लेके बॉडी को बाहर निकाल के ये बात बताइए सर। हम लोग गेट में पहुँचते पहुँचते सर इन लोग का गेट में बाहर निकाल दिया, ये चीज बहुत अन्याय है सर, ये सब अन्याय है। यूनियन हम लोग सर देखिए 10 मिनट लगा घर से आने में तक, और तब तक बॉडी लाके हॉस्पिटल में भेज दिया। सियासत को ये लोग रूम में बंद करके सियासत करके मतलब गेट से बाहर निकाल दिया बॉडी, ये अन्याय है एकदम। लगता है कि हमको 155 को सामने देखिए सर, रास्ता है ना सर, रास्ता सर कोई भी ऑफिसर आया है हम लोग मांग आपका, हम लोग बाहर निकलने नहीं कि इसको पहले कोई नौकरी का अलॉटमेंट पेपर जो हाथ में आने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। वही तो उसमें लिखा है प्रोसेस जो लेटर लिखा गया आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आफ्टर पोस्टमार्टम आपको इमीडिएट चाहिए। हाँ हम लोग इमीडिएट चाहिए। एक दूसरा है नेक्स्ट टाइम टुमारो से या 2 डेज से अगर कोई आदमी वहाँ काम करने जाएंगे तो पहले सेफ्टी इंश्योरेंस होगा, सॉरी सेफ्टी क्लियरेंस होगा, हम लोग भी मानते हैं। ठीक है, अगर नाइगर 30 से ऊपर गैस गया तो कोई बंदा वहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले उसके लिए कोई दबाव हम लोग एकदम एक दिन साइड में जाइएगा। अभी भी हम काम करते हैं, लड़ते हैं, इस्लाम के लिए लड़ते हैं। ये आज नहीं है, पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग पूरा ड्यूटी किया है, लेकिन आज के डेट में कोई मैनेजमेंट का एक ऑफिसर यहाँ पे आया नहीं इंसानियत के खातिर में। सही बात है, सही बात है, एकदम ठीक बात है। ये हमको बहुत खराब लगा। जब क्लियर हो गया था रात में पोस्टमार्टम के बाद फलाना निकला लग रहा कौन देखेगा? पोस्टमार्टम होने के पहले लिखना पड़ेगा कैसे? उसका बाद पोस्टमार्टम में जाएगा, नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं जाएगा। बढ़िया स्पॉट जहाँ डेट किया है ऑन स्पॉट डेट किया है, सियासत बोला के प्लान से बाहर बॉडी निकाला गया है। पहले होगा तब पोस्टमार्टम में जाएगा बॉडी, नहीं तो नहीं जाएगा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी। पहले उनका बच्चा और फैमिली के लिए होगा कुछ, उसके बाद बॉडी हाथ लगा। बॉडी बाहर कहाँ निकाला सियासत देख के?
एक बाहर निकाला क्यों है? जब स्पॉट डेट हो गया, आउटडोर में ऑफिसर बोल दिया जो डेट हो गया डॉक्टर, क्यों बाहर निकाला गया? दत्तो सर था शायद ना, आपका ये स्वामी सर था, पढ़ागा सर था, पढ़ागा सर था। वो जब वहाँ आउटडोर में बोल दिया जो डेथ कर गया, जबरदस्ती 2 बेंच से ऐसा बुला के इन लोग को रूम में बंद करके निकाल दिया बॉडी। हम लोग गेट में आते गैस नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब मतलब पोस्टमार्टम अभी खरीदा भी जा सकता है, उसका कौन गारंटी है? ठीक है कि हमको जैसे फोन आया ना उनका देखिए भैया, हम पहुँच गए, ठीक है 15 मिनट हम टनल गेट में खड़े रहे, हम बोला कंट्रोल रूम से फोन आएगा तभी आपको घुसने देंगे, घुसने भी नहीं दिया, बॉडी निकाल दिया, बंद कर दिया था, फोन कर रहा हूँ तो बोला कि वहाँ 6 आदमी था, किसी को थोड़ा भी हल्का कोई महसूस नहीं हुआ। ये लोग भी पहले कहा यही लड़का आगे बोले थे कि हाँ वैसा हुआ, तो हम बोले 15 दिन में यहाँ पे 3 नंबर केस चल रही है गैस का, तो एक जगह में 3 केस कैसे हो सकता है 15 दिन में? अगर गैस नहीं होता अभी जाके मॉनिटर चेक कराएगा, अभी गैस है सर, अभी भी हम लोग पहले घूमता है गैस में नहीं, अभी भी गैस है सर। सुनिए हम लोग का एक ही मांग है, उसका फैमिली वाला तो कुछ गुजारा हो जाए, कुछ काम हो जाएगा, वो एग्रीमेंट देन एंड देयर 2 डेज सबमिट करना पड़ेगा हमें, उसका फैमिली कहा वही तो उसके बाद 30 डेज के बाद रात में हम चाहती काने हैं सीओ लिखता रात में 11 बजे, जब हम लोग 12 बजे के लगभग सीओ मॉनिटर हम लोग का खराब है ना, उसको चेक किए तो उसमें मतलब बैटरी डाउन है, तो उसमें परसेंट नहीं बता रहा है, तो उसको तुरंत हम लोग को बोले कि जाओ सीओ मॉनिटर मांग के लेके आओ, इसको वापस कर दो, तो नहीं दे रहा था। जबरदस्ती में उसको हम बोले वो नहीं देगा, बोलो काम कर बंद कर देंगे, उसमें हम टीम जाकर अपना रखा हुआ था इंचार्ज, बोला कि पड़ा हुआ है वो निकाल कर दे दीजिए, फिर 6 बजे मांगा है कि 6 बजे वापस कर दीजिए, कितना रेटिंग है नहीं, बैटरी का डाउन है, बैटरी डाउन है, इसमें क्या करना है? बात करनी स्टील मेटल है, मेटल क्या घटना हुआ था? कल रात में नाइट शिफ्ट ड्यूटी था सुजयशील का, और ये लोग कन्वर्टर 2 में काम कर रहा था। वहाँ काम करने के समय रात में 11:30 बजे के लगभग उसको अनईजी फील हुआ और वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद उसके जोड़ीदार लोग भी सब नीचे आए, लोग नाश्ता पानी करने लगा, रोटी भी खाने लगा, तो ये बोला कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, अनईजी लग रहा है। तो लोगों को लगा कि इसको गैस लग गया, तो तुरंत वो लोग पानी नहीं पिला के इसको OHS में ले आया। वहाँ लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ और वहाँ उसका हॉस्पिटल के अंदर में डेथ हो गया। सुजय को अभी सुबह में रात में ही बनपुर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ सभी ने जीत करके कंपनसेशन के लिए मैनेजमेंट के सामने दावी रखा और भी एक एग्रीमेंट हुआ कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके घर से एक एलिजिबल आदमी को परमानेंट नौकरी दिया जाएगा और जो बाकी बेनिफिट्स है वो हम लोग उसको करा के देंगे। तो अभी एग्रीमेंट करके बॉडी को मॉर्ग में रखा गया है और पुलिस आएगा, पोस्टमार्टम कराएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसका जो कंपनसेशन होगा एज पर एग्रीमेंट उसको हम लोग करेंगे। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।
हुए परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। Need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। কিন্তু ওরে পাড় যদি একবার ছেড়ে যায় ও কিন্তু ইয়াত লেগে আছে। GPS का निकल শিবলালদা এর রসিদ বাঁধো দাও, এর রসিদ বাঁধো শিবলালদা, এর রসিদ ভালো ঘটনাটা রাত্রে লোদা গ্রামে সামনে যেটা জোড় আছে, আমরা গোদা বাংলায় জোড় বলি, এই জোড়ের সামনে একটা পলাশ বনের জঙ্গল আছে এবং এটা কোল মাইন্সের
যে কয়লা কেটেছিল তার পাহাড় হয়েছে। সেই পাহাড়ের মধ্যে এই জঙ্গলের মধ্যে যাকে আমরা হাইনা, নেগড়ে এবং গোদা বাংলায় আধবাগা বলি, সেইগুলো তো এখানে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে, রাত্রেতে এরা ঘোরাঘুরি করে। সেই ঘোরাঘুরির সময় কোনো কারণবশত কেউ হয়তো শিয়াল কিংবা খরগোশ মারার জন্যে হয়তো এখানে খাঁচা কিংবা ফাঁদ দিয়েছিল। সেই ফাঁদের মধ্যে এই নেকড়ে আধবাগা একটা খাঁচার মধ্যে ফাঁদে পড়ে। সেই ফাঁদে পড়ার মধ্যে গ্রামবাসী সব জানতে পেরে যায়। পুলিশ এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হয়। তারা এখন এই নেকড়ে হাইনা, ওই যাকে আমরা আধবাগা বলি, তাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে এখন নিয়ে গেল চুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত আন্ডারে লোদা গ্রাম। বলছি এর আগে কি এখানে হাইনা দেখা গিয়েছে? হ্যাঁ, এমনি সচরাচর দেখা যায়, লোকের মুখে শোনা যায় অনেক হাইনা আছে এখানে। দেখাও দিয়েছে এখানে অনেক হাইনা। কোনোদিন কারোর ক্ষতি করেছে? না, ক্ষতি এখন পর্যন্ত ক্ষতি করেনি। তবে ছাগল, কুকুর এইসবগুলা কিন্তু ক্ষতি করেছে এবং খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সন্দেহ যে এরা খায়, শিকার করে। কি নাম আপনার? আমার নাম দক্ষিণারঞ্জন রুইদাস, বাড়ি এখানে চুলিয়া। नारियल फोड़ा फोड़ी हुआ। नहीं इंशाल्लाह अब नहीं होगा। यहाँ आलम ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पे पब्लिक रह नहीं रहा। यहाँ तो लग रहा पब्लिक है ही नहीं, लग रहा गांव देहात के मैंने एकदम छोटा गली नदी बना। कुछ बोल रहे ना इसके लगे क्या इंशाल्लाह हमको बोलने का मौका देख रहा हूँ। सही बात पे सही जवाब देना। ये जो हालात है इसमें तो समाजी की खास पड़ जा रहा है, गलती से रुकी रही और छीटा पड़ गया तो पड़ ही रहा है ना। स्कूल में बच्चे लोग आइए आगे आपके जाना पड़ता है। काम जो है उसमें नहीं आप बताइए ना, ये हमारा 3 बार का एमएलए आसनसोल उत्तर विधानसभा के जो एमएलए हैं 3 बार इस इलाका से निर्वाचित होकर जाते हो और जहाँ के लोग उनको वोट करते हैं, ये रास्ता का कंडीशन है। नहीं मेरे सबका कहना है कि यहाँ वोटर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो ये वोटर वार्ड नंबर 1 के वोटर है। वार्ड नंबर अगर ये सब आप लोग मेन रास्ता ये। आप लोग अपने वार्ड काउंसिलर को कंप्लेन किए थे? सब कुछ किया हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो कितना दिन पहले नारियल फोड़ाया? 1 महीना पहले। 1 महीना पर अच्छा ये मेन रोड यही है क्या? मस्जिद का रास्ता सब 12 साल का सरकार में एक ही अभी नारियल फोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका भतीजा आया है, इंशाल्लाह कुछ होगा। आज हम लोग वार्ड नंबर 21 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब दानिश अजीज़ के रहनुमाई में यहाँ के हमारे एक्टिव मेंबर इरफान साहब भी मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेन रास्ता 21 नंबर वार्ड का मेन रास्ता के ऊपर ड्रेन बह रहा है। और ये चंद दिनों की बात नहीं है, 1 माह 2 माह की बात नहीं है, मुसलसल 2-2.5 साल से रास्ते पे इसी तरह। इससे पहले भी यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर था
अभी मौजूदा तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर है। ये लोग सीधे साधे लोगों को लच्छादार बात करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनका काम करने का मामला सामने आता है तो सिर्फ ये लोग नारियल फोड़ते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे आके देखा है रास्ते को कि बहुत खराब हालत है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, अगर फौरी तौर पे काम नहीं लगाया गया, तो मैं यहाँ से आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, आसनसोल के मेयर को, यहाँ के मंत्री को, कि आने वाला दिन में इसका भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। हम लोग कारपोरेशन बंद कर देंगे इंशाल्लाह रहमान, अगर आप लोग इस काम में हाथ नहीं लगाए तो। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।